Dear participants, we will start it very soon as Sir has joined us. We are hoping to have Sir with us within a few minutes. I request the participants to please be patient. He will be joining us soon. The next session is a demonstrative session for different types of laboratory experiments that is supposed to be carried out regarding earthquake engineering. It will be taken by Major Dr. C.S. Sanghvi sir only. So he will be joining us shortly and will be giving a very nice and elaborate demonstration of the practicals that can be performed. Good afternoon. Are you Good fine? afternoon, sir. Yeah. Yes, yes. So we welcome you all back to the third session of fourth day of online faculty development program on new approaches in geotechnical earthquake engineering. And we welcome you, sir, again for this development program. And thank you so much, sir, for enlightening us over such important topics of the laboratory experiments that are supposed to be carried out. Yeah. Thank you, ma'am. Uh, we will continue from where we stop, and I think uh, if you have any question, you can ask, and then we'll start the session. I'm sharing my screen right now, so uh, if it is visible, please tell me. Let's wait for a moment. Uh, can you see the screen now? Yes, sir, Yes, sir. you can see it. Right, right. Okay. So again, I'm sharing my presentation, and if you have any question, please you can ask. Otherwise, we'll continue with the presentation. Sir, we can continue and questioning session will we will take it in last. Okay, fine. Right. So basically, in the previous session, we said that we need a shake table, we need models, and we need an instrument, right? So these three things are required: shake table, the second part is models, and third is instrumentation setup. उसमें हमें चाहिए जैसे वाइब्रेशन एनालाइजर है, हमारे पास 16 चैनल वाइब्रेशन एनालाइजर, इट मे बी 32 चैनल, तो एक साथ 32 डेटा कैप्चर करेंगे. We have a uniaxial sensor, we have a triaxial sensor. So we have 6 uniaxial sensors, 3 triaxial sensors. So this triaxial sensor will sense the motion in all the 3 directions. So I'm getting the acceleration in x, y, and z direction. यूनिएक्सल सेंसर है तो उसमें मुझे एक ही डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मैंने ओरिएंट किया होगा उसी डायरेक्शन में मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा. So we need this, and this is the actually we have a setup from French company. This is Oros, और उसका precision इतना बढ़िया है, लेकिन this is very costly instrumentation. Nowadays this instrumentation setup is available within means less than 5 lakh rupees. So it is very easy to procure. So as far as our experimental setup is concerned, जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत जरूरी चीज ये है कि जो हमारा मॉडल है उसकी उसकी बेसिक प्रॉपर्टी निकालना. जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं रेनफोर्समेंट मैं सपोज मैं स्टील मॉडल यूज कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये उसका मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी क्या है,
राइट, और अगर वो मुझे प्रॉपर्टी पता नहीं चलती पहले से, तो आई कैन नॉट कंपेयर विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, राइट. सो सबसे पहले है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉडल. दूसरा चीज है कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो जो मॉडल का जो स्टिफनेस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो थियोरेटिकली व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग इज बेसिकली बेस्ड ऑन द आइडियल सिचुएशन, एंड जब हम मॉडल बनाते हैं तो मॉडल में काफी सारा वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि स्टीफनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? सपोर्ट कंडीशन के ऊपर, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं? उसकी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है. अगर हमारा जो मॉडल है उसमें सपोर्ट कंडीशन कुछ अलग है, मैंने जो सोचा है ये फिक्स है, तो फिक्स एग्जैक्ट फिक्सिटी नहीं है, या तो मैंने हिंज सोचा है और एग्जैक्ट हिंज नहीं है, तो उस कंडीशन में मेरा स्टिफनेस, एक्चुअल स्टिफनेस विल बी समथिंग डिफरेंट देन मुझे मेरा थियोरेटिकल स्टिफनेस जो है मॉडल का, राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें स्टिफनेस ऑफ द मॉडल हमें पता होना चाहिए. देन व्हाट वी डू, वी डू इम्पैक्ट हैमर टेस्ट. यस सर. यस. हाँ, हेलो. हाँ, अच्छा, ओके. नहीं नहीं, ऑन नहीं है मेरा. हाँ हाँ, मैं देख लेता हूँ फिर से. हाँ हाँ, ओके. Hello. Am I audible clearly or echo is still coming? Sir, echo is Yes. there. So there is Echo- some background noise. Background noise. Okay. Yes, sir. Wait for a moment. Wait. Hello. Now is it? Yes, sir, reduced? it's reduced. Yes, sir, it's Yeah, reduced. yeah, yeah. Okay. Because the parallels, one more faculty is dealing with the session, so I think the disturbance is right there. Okay. Then we perform the impact hammer test. Impact hammer means, I'm going to explain later on, free vibration test and the shake table test. This is what exactly we are going to do during the experimental setup. Sir, So we have, yes. sir, still there is echo, sir. Okay. What I do is I'm just rejoin again, right? So I think that may Yes. solve the Okay. problem, right? Yeah. Yeah. Please. Yes. Now it is fine. Yes, sir. Right. Okay. Hello. Hello. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Now it's okay. Yes, sir. It's okay now. Relative better now. Okay. Still echo is coming. Yes, sir. Oh. So what should we do? Because Sir, I- we can continue, sir. In between, if there is some disturbance, we will ask you to repeat it, sir. okay. Okay. Sure. Right. So when we talk about uh, if you want to determine the stiffness of the model, right? So we have created a frame. Now this frame, where what actually we are doing, we are putting the like frame like this, right? And we are actually holding it. I'll explain this way. So this will be clear. This is floor 1 and 2. So what actually we do, right? Sir, we request you to please share your screen, sir. Oh, sorry, sir. Yeah, I forgot to share screen.
Is it visible? Yes, sir, it's visible now. Yeah. So basically, we have prepared a frame. This frame basically is a rigid frame, and in this frame we are putting the model. Right? We are putting the model. How we perform the test? First, we apply the load at story 1. Right? So we can measure the deformation. This deformation is measured with respect to this dial gauge. This dial gauge is here. So with the we are placing the dial gauge here, so we can measure the ground floor. We can measure the deformation at the first floor. So what we do is we apply the force. You can see here we have applied the force, right? And when we apply the force, the deformation is taken place. So force stiffness means load required for unit deformation, right? So I can measure the stiffness of the ground story. Then what I'll do, I will lock the first story. मैं फर्स्ट स्टोरी को लॉक कर दूंगा and then I apply the load at the second story, right? And then I measure the deformation of the second story. So now that is the story stiffness. ये इसमें सारे जितने कॉलम्स है, 4 कॉलम है तो 4, 6 कॉलम है तो 6, सब कॉलम का स्टिफनेस आ जाएगा. सो इट्स अ स्टोरी स्टिफनेस, और मुझे स्टोरी स्टिफनेस दूसरे का भी मिल जाएगा. अभी मुझे थियोरेटिकली डेटा खबर मुझे पता है, राइट? वो मुझे पता है तो मैं आई कैन फाइंड आउट थियोरेटिकली एंड आई कैन कंपेयर कि एक्चुअली और थियोरेटिकल में क्या डिफरेंस है. Right. So this is the way we can determine the stiffness of the model. Right. तो आपको एक ऐसा अरेंजमेंट खड़ा करना पड़ेगा अपने लैब में. You can do that, right? और then we perform the first test, that is a free vibration test. Now, what is free vibration and what is the forced vibration? Free vibration means कोई भी मॉडल है उसके ऊपर आप उसको इनिशियली डिस्टर्ब करते हो और डिस्टर्ब करने के बाद उसको वाइब्रेट करने के लिए छोड़ देते हो, राइट? Then the model will vibrate on its own elastic property. That is the free vibration, right? Free vibration means only initial disturbance is there and then the system will vibrate on its own elastic property. That is the free vibration test. And forced vibration test means एक बार आपने डिस्टर्ब किया, उसके बाद ड्यूरिंग वाइब्रेशन आप उसको फिर से डिस्टर्ब करते हो, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो. दैट इज द फोर्स्ड वाइब्रेशन टेस्ट, राइट? सो हम परफॉर्म करेंगे फ्री वाइब्रेशन टेस्ट. फ्री वाइब्रेशन टेस्ट में क्या कि मैंने इनिशियली डिस्टर्ब किया, इनिशियली डिस्टर्ब करने के बाद जो मॉडल है वो अपने आप वाइब्रेट, मतलब अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी के हिसाब से वाइब्रेट करेगा, राइट? अपनी क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी के हिसाब से वाइब्रेट करेगा. सो बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हम वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द नेचुरल पीरियड एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन. एक तो ये फाइंड करेंगे और दूसरा है वी ट्राई टू फाइंड आउट द नेचुरल डैम्पिंग. बिकॉज क्या होगा कि स्टार्टिंग में जब हम वाइब्रेट किया तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा और साइकिल टू साइकिल, बिकॉज मैं बीच में कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूं, तो सिस्टम ने एक वाइब्रेशन स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके ये जो वाइब्रेशन है वो जीरो हो जाएगा. द सिस्टम कम्स टू रेस्ट, राइट? सो पहले फर्स्ट साइकिल से लेके लास्ट साइकिल उसमें उसका एम्पलीट्यूड, उसका जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाएगा, राइट? सो दैट इज द फ्री वाइब्रेशन टेस्ट. एंड we are knowing referring the book of Chopra, we can find out damping ratio using this equation. We need acceleration in the subsequent cycles we need, and we can find out a damping ratio, right? So damping ratio can be easily found out, right? If damping is high तो बहुत जल्दी वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा. अगर डैम्पिंग कम है तो इट विल टेक सम टाइम टू कम टू रेस्ट, राइट? नाउ मैं आपको बताऊंगा, ये वीडियो है, आप वीडियो देखो, उसमें फ्री वाइब्रेशन टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं वो you can go through this video and I think you can get idea how to perform free vibration test, right? ये जो पूरा सेटअप है ना, मैंने मतलब हमने जो बनाया है वो दैट इज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट लेवल. उनको बेसिकली पता होना चाहिए कि अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू कि बिहेवियर कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज है उनको समझनी चाहिए. ये जो है इट इज नॉट फॉर द रिसर्च, मतलब हाई एंड रिसर्च के लिए नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन इसमें आपको पता चलेगा कि फ्रॉम अंडर ग्रेजुएट पर्सपेक्टिव, स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव ये हमें क्या क्या पता होना चाहिए. ये देखिए, ये सेंसर है, राइट? ये सेंसर है, राइट?
नाउ मेरा आवाज आ रहा है? हेलो हेलो, Yes, sir. am I Alright, audible? sir. Yes, you are audible, sir. हेलो, Yes, sir, you are audible. हाँ, ओके। यू सी, यहां से क्या किया, सिंपल है, मैं फिर से मैं बताऊंगा। ये जो है, ये है मॉडल, मॉडल के ऊपर सेंसर्स रखे हुए हैं, ये सेंसर्स है, सेंसर्स। अब एक्सपेरिमेंट इतना सिंपल है, हाउ मेनी स्टोरी इट इज द ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी बिल्डिंग, 3 स्टोरी मॉडल। अब उसको सिर्फ हम डिस्टर्ब करते हैं, सिर्फ डिस्टर्ब, उसको खींचना है और उसको रिलीज कर देना है। नाउ मॉडल विल वाइब्रेट ऑन इट्स ओन इलास्टिक प्रॉपर्टी, राइट, वो वाइब्रेट करेगा। अब ये जो सेंसर है वो यूज होता है डेटा कैप्चर करने के लिए। नाउ इट इज कनेक्टेड विद द कंप्यूटर। अब ये देखिए, ये वाइब्रेशन एनालाइजर है और ये कंप्यूटर में ये पूरा डेटा आपका आ गया कि जिसमें रिडक्शन इन द वाइब्रेशन इज देयर, राइट, यू कैन सी दिस, राइट। सो दिस इज अ फ्री वाइब्रेशन टेस्ट। फ्री वाइब्रेशन टेस्ट सिंपल चीज है कि एक बार आप डिस्टर्ब करोगे, उसके बाद जो मॉडल है वो अपनी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है, ठीक है। सो इट इज अ फ्री वाइब्रेशन टेस्ट। और उसके ऊपर से हमें क्या क्या मिलेगा, 2 चीज मिलेगी, एक तो उसका डैम्पिंग रेशियो और दूसरा चीज है नेचुरल फ्रीक्वेंसी और नेचुरल पीरियड, राइट, वो 2 चीज हमें मिलेगी। सो दिस इज अ फ्री वाइब्रेशन टेस्ट। दूसरा है इंपैक्ट हैमर टेस्ट। इंपैक्ट हैमर मतलब ये इंपैक्ट हैमर है, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ पे ये जो टिप है, जो उसका हैमर का टिप, वहां पे सेंसर है, और ये सेंसर जब हम हिट करेंगे किसी के ऊपर तो हमें पता चलता है कि कितनी एनर्जी हमने अप्लाई किया। सो बेसिकली इट इज अ डिजिटल हैमर, और ये जो वायर है, ये वायर ये इसके बॉटम एंड से यहाँ से कनेक्ट होगा और दूसरा डेटा लॉगर के साथ जाएगा। जब हम उसको हिट करते हैं, then we get a vibration of the model that will see, ये जो है ये जो हैमर है उसको हम ये मॉडल के ऊपर यहाँ पे हिट करेंगे, राइट। तो इसमें हम इंपैक्ट देते हैं। हम यहाँ जो अगला केस था हमने देखा, आगे वाला केस, उसमें हमने उसको डिफॉर्मेशन दिया था, इसमें हम दे रहे हैं इंपैक्ट, मतलब वेलोसिटी दे रहे हैं। उस पहले में डिस्प्लेसमेंट दिया था, इसमें हम वेलोसिटी दे रहे हैं, राइट। अभी देखते हैं हम कैसे टेस्ट परफॉर्म होता है, राइट। सो यू कैन क्लियरली नो कि कैसे करना है ये टेस्ट। ये इंपैक्ट हैमर वो भी एक सेंसर ही है, राइट। अभी ये जो है वो स्प्रिंग मास मॉडल है, ये एक स्प्रिंग मास मॉडल है। उसके ऊपर क्या किया, फिर से देखिए एक बार, उसको इंपैक्ट दिया, राइट, जस्ट लुक एट दिस, इसको इंपैक्ट दिया ना, वहां पे कंप्यूटर के साथ ये इंपैक्ट हैमर कनेक्टेड है, वहां से पता चलेगा। और ये जो स्प्रिंग मास है, ये जो है ना ऊपर, आई टेल यू कि ये जो है, ये जो ऊपर है वो सेंसर है, यहाँ पे इसके ऊपर सेंसर है, ये सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे चारों के ऊपर। तो ये सेंसर और इंपैक्ट हैमर दोनों कनेक्टेड है डेटा लॉगर से। ये फिर से एक बार देख लीजिए कि क्या करते हैं, जस्ट इंपैक्ट देते हैं। नाउ वहां पे सेंसर है, इसके ऊपर लगा हुआ है, ये जो सेंसर है वो उसका डेटा वहां पे कंप्यूटर एनालाइजर में स्टोर हो जाएगा, राइट। तो ये हम करते हैं इंपैक्ट हैमर टेस्ट। इसके ऊपर से भी हमें वही चीज मिलता है, फ्रीक्वेंसी एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एंड दूसरा जो है वो डैम्पिंग रेशियो, राइट। यू सी, ये जो एक्सपेरिमेंट है वो स्टूडेंट ही करते हैं, आई टेल यू। स्टूडेंट को जो करने देते हैं तो आई थिंक दे विल लर्न अ लॉट, राइट, तो वो सीखेंगे। तो हमारी जो लैब है वो इट इज फॉर द स्टूडेंट बाय द स्टूडेंट, राइट। तो उनको ही करना है एक्सपेरिमेंट, उनको हैंड्स ऑन सेशन, उनको ही डेटा इंटरप्रेट करना है, उसमें कहीं भी तकलीफ हो रही है तो वी आर देयर, राइट। सो दिस इज अ वेरी सिंपल टेस्ट, बट उसके ऊपर अब डैम्पिंग रेशियो भी मिल जाता है, एंड द सेकेंड पार्ट इज फ्रीक्वेंसी और नेचुरल पीरियड भी मिल जाता है, राइट। और यहाँ से जो उनको एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो एक्सपीरियंस लाइफ टाइम के लिए होता है। I'll share some more videos also. So then we perform a shake table test, right? तो shake table test में क्या करते हैं, तो बेसिकली हम शेकिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर मॉडल रखते हैं, एंड देन वी शेक द प्लेटफॉर्म, और उसके बाद उसका रिस्पॉन्स मेजर करते हैं, राइट। तो वी ट्राई टू डिटरमाइन द
frequency response curve, right? For example, we have a single story building, right? Single story building मतलब एक ही स्लैब है. Now generally ये single story building हम कैसे मॉडल करते हैं? We are modeling like there is a heavy mass at the top. यहाँ पे heavy mass at this mass of the slab, right? And the force is applied. So if you look at this, then it is a mathematical model where the mass is there connected with the spring and the dashpot. It's a damping. This is basically damping, and this is a stiffness. This will represent the column, right? Damping means it is the frictional characteristic of the system. It will also measure the how much energy absorbed by the system, right? Damping will tell you how much energy absorbed by the system, right? So if you draw the free body diagram, then this is the free body diagram, right? Where the inertia force is there, damping, stiffness force, and external force is there, right? Now we are knowing what is the frequency of single degree of freedom system, root k by m, or frequency 1 over 2 pi square root of k by m. This is circular frequency, omega is radian per second, and natural frequency is cycle per second. Now if you look at the k is basically I assume the mass is not allowed to rotate. Mass is not allowed to rotate, so we say that it's a 12 EI upon L cube, 12 EI upon L cube, right? Now you see frequency depends on how many parameters, कितने parameters को depend करता है. एक तो ये 12 ही EI है या 4 EI है, depends on support condition. ये hinge है या तो fix है. यहाँ मैंने assume किया कि ये fix है और mass is not allowed to rotate, तो दोनों fix के हिसाब से 12 है. E means modulus of elasticity, I means moment of inertia, and height and the mass. ये actually 5 चीजों के ऊपर डिपेंड है. तो हमने ये जो मॉडल बनाया, ये जो मॉडल यही पैरामीटर्स के ऊपर मॉडल बनाया. This is a spring mass model. Right? This is to understand the effect of various parameters of frequency in actual period of the structure of single degree of freedom system. तो क्या क्या मॉडल्स बनाए? तो एक डिफरेंट मटेरियल, उसका मतलब कि यहाँ पे हमने क्या चेंज किया, यहाँ पे हमने चेंज किया ई का वैल्यू, राइट? हाइट मतलब क्या किया हमने, पहले यहाँ पर एल क्यूब एल चेंज किया, यहाँ पे हमने मास चेंज किया, और यहाँ पे हमने चेंज किया आई, राइट? जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट. सो हमने बेसिकली ये 4 पैरामीटर्स ये उसके ऊपर ये मॉडल बनाया. तो जो पहला मॉडल है, दिस इज विद स्प्रिंग मास मॉडल विद डिफरेंट मटेरियल. तो हमने मटेरियल चेंज किया, एक कॉपर है, दूसरा ब्रास है, फ्लेक्सीप्लाई है, स्टेनलेस स्टील है. ये चार मटेरियल हमने सिलेक्ट किया, राइट? और ये चारों के ऊपर हम क्या करते हैं, सेंसर लगा देते हैं, एंड देन वी शेक ऑन अ शेक टेबल, राइट? वी शेक इट ऑन अ शेक टेबल, और जैसे हमें ये मिलता है कि फ्रीक्वेंसी एक्सेलरेशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व हम ड्रॉ करते हैं. तो दिस इज एफएफटी, राइट? एफएफटी में मुझे मिलता है, अब देखो यहाँ पे आपको एक स्पाइक मिला है, राइट? सो बेसिकली दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, राइट? ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसकी, राइट? बाकी सारे पीक्स आपको नहीं दिखाई देंगे ज्यादा, ये एक बड़ा पीक आएगा. तो ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, तो सिंगल डिग्री में आपको एक फ्रीक्वेंसी मिलेगा, राइट? सिंगल फ्रीक्वेंसी यू विल गेट. This is a frequency versus acceleration curve. So जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वहां पे आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिलता है, राइट? लुक एट दिस इज फॉर द स्टेनलेस स्टील, राइट? तो ये स्टेनलेस स्टील का फ्रीक्वेंसी कितना आया, ये एक्सेलरेशन हाईएस्ट है, तो यहाँ पे आपको उसका फ्रीक्वेंसी मिलेगा, राइट? सेम वे दिस इज अ फ्लेक्सीप्लाई, राइट? तो ये दिस इज द फ्रीक्वेंसी, देन राइट? तो ये जो है आपको यू गेट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. ये हमारा मॉडल है, फिर से देख लीजिए, ये मॉडल है हमारा, चार अलग अलग मटेरियल यूज किया है, राइट? नाउ हम उसके ऊपर टेस्ट करते हैं. तो यहां से हम क्या सीखना चाहते हैं, ये इसके ऊपर हम ये सीखना चाहते हैं कि एम आई ऑडिबल ना? हेलो, यस सर. यस सर. अभी हम स्प्रिंग मास मॉडल का एक्सपेरिमेंट देखेंगे. तो यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं कि रिजोनेंस क्या है. रिजोनेंस क्या है? रिजोनेंस मतलब
the frequency of any system matches with the frequency of external excitation force. अगर ये मैच हो जाता है तो क्या होगा, वो लार्ज रिस्पॉन्स बताएगा, राइट? मैंने हमेशा ये बताता हूँ कि बाय सिंपल एग्जांपल, कि अगर आपको आइसक्रीम पसंद है और कोई आपको आइसक्रीम आपको ऑफर करेगा तो यू विल बी एक्साइटेड, राइट? तो आपकी फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, राइट? सो आपको अगर आइसक्रीम पसंद नहीं है और कोई आपको आइसक्रीम ऑफर करेगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी, राइट? सो इफ फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो रिस्पॉन्स ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती तो फ्रीक्वेंसी आपका रिस्पॉन्स कम होगा। तो यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, एक तो रिजोनेंस सीखेंगे, रिजोनेंस क्या होता है, दूसरी चीज हम सीखेंगे इसके ऊपर से हम वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, राइट? वो भी हम फाइंड करने का प्रयत्न करेंगे, राइट? सो लुक एट दिस एक्सपेरिमेंट, आई थिंक दिस विल टेल यू एवरीथिंग। जब मैं पढ़ता था तब मुझे पता था कि भाई, हमारे प्रोफेसर बताते थे कि भाई रिजोनेंस क्या है। अभी रिजोनेंस क्या है, पता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मैचेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, देन लार्ज रिस्पांस विल बी ऑब्जर्व। अब देखो यहाँ पे मैंने 4 मॉडल रखे, मतलब ये इज अ स्प्रिंग मास मॉडल। स्प्रिंग मास मॉडल जो होता है इसमें हैवी मास एट द टॉप और ये वर्टिकल एक स्ट्रिप है, राइट? जैसे स्प्रिंग के तरफ, ये वेरी इलास्टिक इन नेचर। तो ये जो मास है वो स्लैब का मास रिप्रेजेंट करता है और वर्टिकल जो है वो कॉलम या तो वॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। इट मींस इट इज अ सिंगल स्टोरी बिल्डिंग। तो ये स्प्रिंग मास मॉडल है, वो बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करता है, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग को, राइट? अभी मैं क्या करता हूँ, उसको मैंने शेक टेबल के ऊपर रखा है, राइट? चारों को एक साथ, ये सारों एक ही फाउंडेशन पे उसको लिया गया है, चारों सिस्टम। अभी देखो, मैंने एकदम लो फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट किया। अभी लो फ्रीक्वेंसी सबको मैंने सेम फ्रीक्वेंसी अप्लाई किया है, बिकॉज दे आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। अभी मैं लगा रहा हूं तो सिर्फ ये फर्स्ट वाला वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है ना, फर्स्ट वाला। तो उसका मतलब क्या, उसकी फ्रीक्वेंसी और शेक टेबल की फ्रीक्वेंसी नजदीक है, तो उसका रिजोनेंस आया। अभी मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं। अब देखो, जब भी मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं क्या होता है, लुक एट द अदर मॉडल्स, राइट? मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, नाउ जो पहला है उसका रिस्पॉन्स कम हो गया, है ना? पहले का रिस्पॉन्स कम हो गया, राइट? ये बंद हो गया पहला वाला। सेकंड का रिस्पॉन्स बढ़ गया। अभी मैं फ्रीक्वेंसी और बढ़ा रहा हूं, राइट? अभी आप देखो क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टॉप्स, चौथा भी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लेकिन अभी तीसरे का रिस्पॉन्स देखिए आप क्या हो रहा है। नाउ इट स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग, ये देखिए, ये थर्ड इज नाउ वाइब्रेटिंग। आपको क्लियर दिख रहा है ना ये वीडियो? यस सर। या अभी मैं फ्रीक्वेंसी और बढ़ा रहा हूं, अब आप देखिए क्या हो रहा है। पहले 3 जो है उसका वाइब्रेशन धीरे धीरे कम होता गया, और अभी चौथे का वाइब्रेशन देखिए आप, राइट? अब देखिए ये फोर्थ वन, राइट? उसका रिस्पॉन्स that will be the highest response. So अभी मैं शेकिंग फ्रीक्वेंसी है, it is close to the frequency of this model, right? So this is a resonance. तो आपको पता होना चाहिए resonance क्या है, right? अब जब देखिए perfectly, this is a resonance, right? आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं ले सकता हूँ यहाँ पे, right? कुछ पूछना है तो? Sir, what are the different frequencies? 1 minute. Pardon? Sir, at which frequencies Yes. model 1, model 2, model 3 and model 4 or get resonant? हाँ, वो है ना, एक रिजल्ट यहाँ पे दिया है। दिस इज जो फ्रीक्वेंसी जो है, फॉर एग्जांपल माइल्ड स्केल है तो उसका 3.05 था, राइट? स्टेनलेस स्टील था, उसका 1.15 था, फ्लेक्सीप्लाई का 3.25 था, ब्रास का 2.8 था, राइट? तो ये फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी वी गेट। यू सी यहाँ पे हमने क्या किया, एक जो है वो जो हमारा जो एनालाइजर है FFT, मतलब वहां से लिया, दूसरा स्टैट में भी मॉडल किया था, और थियोरेटिकली हमारे जो प्रॉपर्टी थे उसके ऊपर से। आप देखो माइलस्टोन में 3.05, 3.18, 3.4,
राइट। तो ऑलमोस्ट 10% 50% के वेरिएशन के अंदर आ रहा है, राइट। लेकिन ये क्यों हो रहा है? यहाँ पे थियोरेटिकल है और ये एनालाइजर है। तो मेरे हिसाब से जो एनालाइजर की फ्रीक्वेंसी है वो परफेक्ट फ्रीक्वेंसी है, या वो हमारे मॉडल की फ्रीक्वेंसी है। और थियोरेटिकल हम काम करते हैं तो उसमें क्या सपोर्ट कंडीशन और सब जो है वो हमने आइडियल सपोर्ट कंडीशन लिया होता है, उसकी वजह से ये थोड़ा वेरिएशन आता है। क्योंकि मैं फिक्सिटी सोचता हूँ, वहाँ फिक्सिटी नहीं है, वहां पे मैंने वहां पे वो मॉडल में कुछ पिन किया है तो वो पूरी फिक्सिटी नहीं आएगी, तो उस हिसाब से सपोर्ट कंडीशन कुछ चेंज होगा, कुछ कुछ बदलाव दूसरे पैरामीटर्स में होंगे। तो थियोरेटिकल और एनालाइजर मतलब जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उस दोनों में फर्क हो सकता है, राइट। ये 1.15, 1.52, 3.27, 3.27, right? So almost it is very close as far as all the three parts is concerned, right? Then we go for the spring mass model, जो है वेरिएबल हाइट के हिसाब से हम किया, राइट। तो इसमें सिर्फ हमने हाइट चेंज किया। अभी हाइट चेंज किया तो क्या होगा वो बताइए। हाइट चेंज किया तो जो जिसकी हाइट कम है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम या ज्यादा? जिसकी हाइट कम है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ये हमारा इक्वेशन है, राइट। ये हमारा इक्वेशन है। उनके सामने अगर गिर गई हाइट कम है, हेलो, सर चुनाव आ गए इसलिए सर। किसी का ऑडियो चालू है और चुनाव की बात हो रही है। हो गया सर। जी। ये Participants please respond करिए। Participants are requested to respond. अगर यहाँ पे लेंथ जो है वो में कम है तो स्टिफनेस की क्या होगा? स्टिफनेस कम या ज्यादा? हेलो, Someone has written in chat box, if the height is less, the stiffness will be more. या स्टिफनेस विल बी मोर। तो यहाँ पे सेम होगा, राइट। ये जो हाइट है वो कम है तो वहाँ स्टिफनेस ज्यादा, और जो हाइट ज्यादा है वहाँ स्टिफनेस कम होगा। कई बार क्वेश्चन आते हैं कि सपोज ड्यूरिंग अर्थक्वेक हाई राइज बिल्डिंग या लो राइज बिल्डिंग अफेक्ट होता है, राइट। ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमारा जनरली हाई राइज बिल्डिंग ज्यादा अफेक्ट होता है। तो जरूरी ये नहीं है। जरूरी चीज क्या है कि अगर ये जो जिसका हाइट ज्यादा है, मुझे पता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। अगर लो फ्रीक्वेंसी वाला अर्थक्वेक आया तो हाई राइज को ज्यादा असर होगा, और मुझे पता है कि ये लो राइज है तो लो राइज में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अगर हाई फ्रीक्वेंसी वाला अर्थक्वेक आया तो लो राइज को ज्यादा असर होगा, राइट। सो दिस इज यू टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, राइट। सो आप देखिए कि फ्रीक्वेंसी जिसकी कम है, जिसकी हाइट कम है उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और जैसे हाइट बढ़ती जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है, ठीक है ना। That means low frequency वाला लंबी वाली हाइट को ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। या लो फ्रीक्वेंसी वाला अर्थक्वेक आया तो वो हाई राइज को ज्यादा असर करेगा, ठीक है ना। और अगर हाई फ्रीक्वेंसी वाला अर्थक्वेक आया तो लो राइज वाले बिल्डिंग को ज्यादा असर करेगा। मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। 2001 अर्थक्वेक में यहाँ अहमदाबाद में ग्राउंड प्लस 4 स्टोरी बिल्डिंग जो थे वो करीबन 128 बिल्डिंग गिरे थे। 128 बिल्डिंग कोलैप्स्ड इन अहमदाबाद, और ग्राउंड प्लस 10 स्टोरी बिल्डिंग सिर्फ 2 ही गिरे थे, राइट। तो एक उसमें पता चलता है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो अर्थक्वेक था इट वाज क्लोज टू ग्राउंड प्लस 4। इट इज नॉट एक्जेक्टली मैचिंग, इतना समझ लो। रिजोनेंस इज नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग अर्थक्वेक, राइट। वो हमने कोड में भी लिखा है कि रिजोनेंस जनरली अर्थक्वेक में नहीं होता है, क्योंकि अर्थक्वेक कैरी वेरियस फ्रीक्वेंसीज। मेरी बिल्डिंग की फ्रीक्वेंसी तो एक है, लेकिन अर्थक्वेक अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेके आता है, पूरी शेकिंग की तरह में उसकी फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है। तो रिजोनेंस पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी इज क्लोज टू लो राइज, जैसे ग्राउंड प्लस 4 स्टोरी के क्लोज होती है, तो उसको ज्यादा असर होगा। तो हमारे 2001 के अर्थक्वेक में ग्राउंड प्लस 4 स्टोरी बिल्डिंग ज्यादा गिरे थे ग्राउंड प्लस 10 स्टोरी से, और फ्रीक्वेंसी का स्टडी किया गया तो पता चला कि
frequency is not exactly matching, but it was close to 4-story building rather than 10-story building, right? है ना? Sir, we have a question in the chat box. Yes, Because stiffness is more, the frequency is less for the high-rise building. Is this the right reason? frequency. Because stiffness is more, the frequency is less. हाई राइज की बात कर रहे हैं. Yes sir, for high-rise building. हाई राइज में फ्रीक्वेंसी मतलब स्टिफनेस एज कंपेयर टू लो राइज फ्रीक्वेंसी कम होता है, मतलब स्टिफनेस कम होता है ना? High-rise में सर stiffness कम होगा. या Okay. है ना? तो फ्रीक्वेंसी उसका कम रहेगा, फ्रीक्वेंसी कम रहेगा, है ना? फ्रीक्वेंसी कम रहेगा तो उसका लो फ्रीक्वेंसी वाला अर्थक्वेक आएगा तो ज्यादा असर करेगा, और लो राइज जो बिल्डिंग होते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, तो उसमें हाई फ्रीक्वेंसी वाला अर्थक्वेक आया तो ज्यादा असर करेगा. Okay. लो राइज वाला हाई फ्रीक्वेंसी वाले अर्थक्वेक पे ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगा. यस, लो राइज वाला हाई फ्रीक्वेंसी में और हाई राइज वाला लो फ्रीक्वेंसी में. मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ. 1984 में मैक्सिको में अर्थक्वेक आया था, राइट? मैक्सिको सिटी. नाउ ये जो अर्थक्वेक था वो इट वाज अ वेरी लो फ्रीक्वेंसी अर्थक्वेक था, राइट? अभी ये लो फ्रीक्वेंसी वाला अर्थक्वेक वो मैक्सिको सिटी से 300 किलोमीटर दूर है, उसका एपिसेंटर था, राइट? अभी वहां पे करीबन 8 to 14 स्टोरी, 8 माल से 14 स्टोरी बिल्डिंग को उसको बहुत ज्यादा असर हुआ था. अभी लोगों ने स्टडी किया कि ये लो फ्रीक्वेंसी में ये 8 to 14 स्टोरी बिल्डिंग का इतना ज्यादा असर हुआ, तो इससे ज्यादा हाई स्टोरी वाले को ज्यादा होना चाहिए था. बाद में उन्होंने स्टडी किया तो उनको पता चला कि जो मैक्सिको सिटी जो था वो वहां पे पहले लेक था और उसको फिल्ड अप, मतलब सॉइल से फिलअप किया गया और उसके बाद कंस्ट्रक्शन किया गया था. तो जो सॉइल थी इट वाज अ सॉफ्ट सॉइल. तो अभी क्या हुआ, ये लो फ्रीक्वेंसी वाला अर्थक्वेक आया और जब ये यहाँ पे सॉफ्ट सॉइल में पहुंचा तो सॉफ्ट सॉइल का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो मैग्नीफाई करता है वो. तो ये जो लो फ्रीक्वेंसी वाला अर्थक्वेक है उसको मैग्नीफाई किया और उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी हुई वो फ्रीक्वेंसी वाज वेरी क्लोज टू 8 to 14 स्टोरी बिल्डिंग, राइट? तो करीबन 8 से 14 स्टोरी का जो बिल्डिंग है उसके क्लोज थी ये फ्रीक्वेंसी. तो 8 to 14 स्टोरी बिल्डिंग को बहुत ज्यादा असर हुआ, राइट? सो दिस इज अ वेरी गुड केस ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग कि एक सॉफ्ट सॉइल जो होता है वो अर्थक्वेक मोशन को मैग्नीफाई करता है, राइट? तो ये हमने 1984 मैक्सिको सिटी अर्थक्वेक में देखा था. और ये जो अर्थक्वेक है वो दिस इज द ओनली अर्थक्वेक जिसमें जो हमारे एक्सपर्ट्स है वो रिजोनेंस को डिनाई नहीं करते थे कि इसमें रिजोनेंस हुआ था. एक्सेप्ट दिस अर्थक्वेक किसी अर्थक्वेक में रिजोनेंस नहीं देखा गया था. फ्रीक्वेंसी क्लोज हो सकती है लेकिन रिजोनेंस नहीं गया, ठीक है ना? इज इट ओके? Yes sir. I hope that question is answered, ma'am. That was Vaishali ma'am. Ma'am, if you want, okay, thank you, ma'am. Yes, sir, your question, you have rightly addressed the question, sir. Right. Then we have another spring mass model where the different mass is there. उसको mass बढ़ाते जाओ, mass बढ़ेगा तो it's square root of k by m. mass नीचे है तो उसका फ्रीक्वेंसी, मास बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, राइट? तो कई बार हम सोचते हैं कि भाई एक फ्लैट स्लैब है और एक नॉर्मल स्लैब है, राइट? फ्लैट स्लैब और नॉर्मल. फ्लैट स्लैब में पता है कि बीम नहीं है तो उसका थिकनेस ज्यादा होगा फ्लैट स्लैब का, और नॉर्मल स्लैब का थिकनेस कम होगा. तो वेट के हिसाब से फ्लैट स्लैब का वेट ज्यादा होगा, नॉर्मल जो है उसका वेट कम होगा. तो फ्रीक्वेंसी में उसका असर पड़ेगा. आप जब डिजाइन करते हो, शेकिंग करते हो, तो फ्लैट स्लैब है वो एक्चुअली लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ज्यादा वाइब्रेट होगा, राइट? वही बिल्डिंग विद अ फ्लैट स्लैब विल वाइब्रेट एट अ लो फ्रीक्वेंसी, और बिल्डिंग विद अ नॉर्मल स्लैब विल वाइब्रेट विद अ हाई फ्रीक्वेंसी, राइट? ये आपको समझना चाहिए. We have performed a test on it, and the last was we have changed the thickness. मैं सभी एक्सपेरिमेंट नहीं बताता हूं आपको क्योंकि टाइम इतना नहीं है, क्योंकि काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स है पीछे. तो जस्ट मैं आपको ये बताता हूं कि कैसे करना है. तो वेरिएबल थिकनेस, तो मैंने यहाँ पे थिकनेस चेंज किया, 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm ऐसा थिकनेस किया. सॉरी, इसके 0.5 mm, 1 mm, 1.5 and 2 mm ऐसा थिकनेस है. अभी थिकनेस मैंने चेंज किया तो क्या हुआ, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया
बी डी क्यूब बाई 12, तो बी डी क्यूब, बी मैंने सेम रखा है, सिर्फ डेप्थ चेंज किया, तो बी डी क्यूब बाई 12 के हिसाब से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। अभी मेरा जो इक्वेशन है वो के बाई एम 12 है अपॉन एल क्यूब, तो जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, राइट। तो यहाँ पे आपको ये सोचना है कि अगर मेरा कॉलम है वो 900 mm का है डेप्थ वाइज और दूसरा है वो 300 mm वाला है, तो डेफिनेटली 900 mm वाला कॉलम है उसका स्टिफनेस ज्यादा होगा, स्टिफनेस ज्यादा होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा रहेगी, राइट। सो अगेन वी हैव टू से दैट दिस फ्रीक्वेंसी का इम्पैक्ट जो है वो इसी हिसाब से भी आएगा, राइट। और ये रिजल्ट है, राइट। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट वन. Suppose there is a multi-story building, right? So this is here it is a 3-story building, right? 3-story का है. Ground plus 2 means it is a 3-story. Now ये 3-story है, तो basically इस प्रकार का बिल्डिंग है. हमने यहाँ पे जो मॉडल बनाया है वो ऐसा बनाया कि हमें ज्यादा डिफॉर्मेशन देखने मिले, राइट. डिफॉर्मेशन के हिसाब से हमने फ्लेक्सिबल मॉडल्स बनाए हैं. जैसे हमारे जो रियल स्ट्रक्चर होता है उसमें डिफॉर्मेशन बहुत कम होता है, लेकिन ये रियल डिफॉर्मेशन जो हमें है उसमें हमें ज्यादा मतलब जो दिखाई देगा ज्यादा उसको मैग्नीफाई करके बताएंगे तो लोगों को ज्यादा समझ में आएगा. सो इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल मॉडल. हमने 1 2 3 ऐसा स्टोरी रखा है और इसको हमने स्टैट में मॉडल किया, राइट. इसको स्टैट में मॉडल किया एंड देन वी फाइंड आउट व्हाट इज द फर्स्ट मोड, व्हाट इज द सेकंड मोड, व्हाट इज द थर्ड मोड. तीनों मोड हमने कैप्चर किया स्टैट में, राइट. अभी आप देखो हमने परफॉर्म किया ये एक्सपेरिमेंट इसी मॉडल के ऊपर. अभी आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट. अभी ये देखो ये ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी मींस 3 स्टोरी का बिल्डिंग है. सो हैवी मास इज लोकेटेड एट द फ्लोर लेवल और यहाँ पे हमने सेंसर रख दिया है, सेंसर रखा है, उसको कनेक्ट किया है और ये शेक टेबल है. नाउ अब हाइट का देखो, हाइट ग्राउंड फ्लोर का ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स है एज कंपेयर टू सेकंड एंड थर्ड स्टोरी, राइट. ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट और सेकंड से, तो ये ग्राउंड फ्लोर का हाइट ज्यादा है तो इट बिकम अ सॉफ्ट. ये उसका फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो गया, स्टिफनेस कम हो गया, राइट. अभी क्या हो रहा है देखो, अभी ये 3 मास है तो हमें एक्चुअली बेसिकली 3 फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगा, राइट. फ्रीक्वेंसी 1 हमें पता है, हम वो स्टडी कर चुके हैं मोड शेप्स. तो मोड शेप हम स्टडी करेंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी 1 मिलेगा, फ्रीक्वेंसी 2 मिलेगा, फ्रीक्वेंसी 3 मिलेगा. नाउ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये हम जानते हैं, राइट. अभी यहाँ पे देखो कि ये कैसे वाइब्रेट हो रहा है. जस्ट लुक एट दिस, राइट. अभी देखो ये पूरा ये पूरा वाइब्रेट हो रहा है फर्स्ट मोड में. ऑल द मास आर मूविंग ऑन वन साइड. मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, अभी जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो उसका डिफॉर्मेशन देखिए, वो काफी ये कम हो गया है ना, ये काफी कम हो गया, ठीक है. तो ये बहुत जरूरी है कि ये फर्स्ट मोड में जो वाइब्रेट करेगा, तो अगेन आई एम सेइंग फर्स्ट मोड क्या है. देखो फर्स्ट मोड में क्या हो रहा है, लो फ्रीक्वेंसी में तीनों मास एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, राइट. जस्ट लुक एट दिस, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन. देन मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं तो मुझे उसकी दूसरी फ्रीक्वेंसी मिली और दूसरी फ्रीक्वेंसी में उसका शेप टोटली अलग हो गया. फर्स्ट मोड में जो वाइब्रेट हो रहा है वो सेकंड मोड में कुछ अलग ही शेप में वाइब्रेट कर रहा है. वो कैसा शेप होगा वो हम देखेंगे, ठीक है. ये देखिए, राइट. राइट. सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप जब भी कोई सिस्टम लेते हो, ये देखिए ये फर्स्ट मोड है तो ये मास 1 2 एंड 3 एक ही डायरेक्शन में जा रहा है. मोड 2 मतलब सेकंड फ्रीक्वेंसी है तो कुछ मास एक्स पॉजिटिव में जा रहा है, कुछ नेगेटिव में जा रहा है. तीसरे में एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, राइट. तो यहाँ पे आप देखो मोड 1 में कैसे फाइंड करता हूँ कि एक जीरो क्रॉसिंग है, जीरो क्रॉसिंग एक ही है. यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ये मीन पोजीशन से यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, यहाँ से क्रॉस हो रहा है, तो ये सेकंड मोड है. थर्ड मोड में 1 2 और 3 बार वो क्रॉस होगा और फर्स्ट मोड में सिर्फ एक ही बार,
फर्स्ट मोड में वो अपनी मीन पोजीशन से एक ही बार वो इंटरसेक्ट होगा, राइट, दिस इज द फर्स्ट मोड। सेकंड मोड में 2 बार, वो पूरा स्ट्रक्चर 2 बार उसको इंटरसेक्ट करेगा मीन पोजीशन को, और थर्ड मोड में 3 बार वो 3 जगह उसको इंटरसेक्ट करेगा, राइट। सो फर्स्ट मोड क्या है, सेकंड मोड क्या है, थर्ड मोड, ये आप यहां से सीख सकते हो, राइट। ये हमने कैप्चर किया है, ये देखो ये फर्स्ट मोड है, राइट। ऑल द मासेस आर मूविंग ऑन वन साइड। आप ये देखो, ये मास, ये 4 स्टोरी है, तो ये ऑल आर मूविंग ऑन वन साइड। ये हमने कैप्चर किया है फोटोग्राफ्स में। देखिए ये जो है, ये मास जो है, ये मास और ये मास इस तरफ मूव हो रहा है, ये दोनों मास इस तरफ मूव हो रहा है, राइट। दिस इज द मोड ऑफ वाइब्रेशन, राइट। सो दिस यू सी, बट जैसे हम पढ़ते हैं तो पता होता है कि मोशन है क्या, ये कैसे चेंज होता है। तो यहाँ पे परफॉर्म करोगे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक ही मॉडल में, तो उसका शेप चेंज होता रहेगा, राइट। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो लड़के देखते हैं वो बिलीव करेंगे ना, यस मेरा बिल्डिंग ऐसे बिहेव करेगा, है ना। उसको कॉन्फिडेंस आना चाहिए अंडर डायनेमिक लोड मेरा स्ट्रक्चर कैसे बिहेव करने वाला है, ठीक है ना। तो अभी उसका फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट मोड का फ्रीक्वेंसी 2.13 है, सेकंड मोड का 6.52, थर्ड मोड का 11.52। वो हमने स्लाइड और एक्सपेरिमेंटल दोनों को कंपेयर किया, ऑलमोस्ट सेम। नाउ ये बेसिक डायनेमिक्स के रिलेटेड था। हमें ऐसा पता रहता है कि डायनेमिक्स सीखना बहुत डिफिकल्ट है, हमारी परेशानी, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि डायनेमिक्स हमने अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कहीं पढ़ाई नहीं है, राइट। अभी तो एचटी के हिसाब से काफी सारा मतलब पेरिफेरल कोर्सेज इतने हो गए कि हमारे कोर सब्जेक्ट में डायनेमिक्स हो सकता है कि अंदर हम पढ़े नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो डायनेमिक्स हमें डिफिकल्ट लगता है, स्टैटिक्स वाले काफी सारे सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, तो वी आर वेरी कंफर्टेबल फॉर द स्टैटिक्स, बट डायनेमिक्स के लिए वी आर नॉट कंफर्टेबल। हमें अगर सही टाइम हमें इसके पीछे देंगे तो we can understand the behavior of structure under dynamic forces like earthquake and wind, उसका हम behavior जान पाएंगे, ठीक है ना। अभी जो मैं बात करूंगा डायनामिक्स को छोड़ के, अभी जो बिल्डिंग का डिफिशिएंसी है उसकी मैं बात करूंगा, राइट। सो मैं पहली बात करूंगा, मैं टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल इरेगुलरिटी, और उसमें मैं आई विल टॉक अबाउट द सॉफ्ट स्टोरी और ओपन ग्राउंड स्टोरी, और यू कैन से इट इज अ पार्ट ऑफ स्टिफनेस इरेगुलरिटी, राइट। हमने just for a moment please, अब जब देखिए ये जो है, ये ग्राउंड प्लस 4 स्टोरी बिल्डिंग है, तो ग्राउंड फ्लोर पे क्या है, ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग है, राइट। यहाँ पे पार्किंग है, दिस इज पार्किंग, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ कॉलम है, और फर्स्ट फ्लोर पे कॉलम एंड वॉल दोनों है, राइट। सो द ग्राउंड फ्लोर विल बिकम वेरी फ्लेक्सिबल, वो बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएगा, और फर्स्ट फ्लोर थोड़ा स्टीफ हो जाएगा। तो अगर ये व्हाट इज द सॉफ्ट स्टोरी, द स्टीफनेस ऑफ एनी स्टोरी is less than 70% of the upper story, it is known as the soft story. Excuse me, sir. ये देखिए, this is the classical example of the soft story, right? ऐसे बिल्डिंग हम बनाते आए हैं और अभी भी बनाते हैं। 2001 के अर्थक्वेक में ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग गिरे थे, फिर भी हम फिर से अहमदाबाद में यही ऐसा ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है ना। ये देखिए, this is also a case of soft story. अभी ये प्लांट्स को बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे, we don't know, है ना। प्लांट्स रखे हैं वहां पे। These are also soft story. Now we are able to see the slides. तो ये हमें हर जगह देखने मिलते हैं। ये जो नया बांका मोड़ है, राइट, वहां पे भी सॉफ्ट स्टोरी बना हुआ है, राइट। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कहां क्या होने वाला है, जो ऊपर है वो वॉल और कॉलम है, तो वो इट बिकम अ वेरी स्टीफ, ग्राउंड वाला फ्लेक्सिबल होगा। तो ये पूरा डिफॉर्मेशन है, ये पूरा बिल्डिंग का डिफॉर्मेशन कहां पे आएगा, जो फ्लेक्सिबल है वहीं पे आएगा, ग्राउंड स्टोरी पे। और हमें पता है कि कंक्रीट इज हैविंग अ लिमिटेड डिफॉर्मेबिलिटी, अब वो ज्यादा डिफॉर्म करेगा तो वो क्रैक हो जाएगा, राइट। तो ये पूरा सिस्टम कैसे बिहेव करता है, इट लाइक इन्वर्टेड पेंडुलम, ये इन्वर्टेड पेंडुलम के जैसा बिहेव करता है, राइट। कि ये इतने कॉलम के ऊपर पूरा बिल्डिंग, ये पूरा बिल्डिंग आता है, ये पूरा बिल्डिंग इसके ऊपर आता है, राइट। तो ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के कॉलम पे ऊपर वाइब्रेट करता है, राइट। तो क्या होता है, यू कैन सी ये नेचर है इतना 2 मिनट के अंदर
वो भूकंप आया कच्छ में और अहमदाबाद में, सारे के सारे बिल्डिंग्स वो विद इन 2 मिनट्स चेक कर दिए, राइट। लुक एट दिस, यहाँ पे रेनफोर्समेंट डिटेलिंग ठीक नहीं है, राइट। ये देखिए क्या हुआ, सॉफ्ट स्टोरी आइडेंटिफाई और उसको ले लिया, बात खत्म, कि दिस इज रॉन्ग, यू कैन नॉट डू दिस, राइट, यू हैव नॉट डिजाइन दिस बिल्डिंग फॉर द सॉफ्ट स्टोरी, सो इट इज गॉन, राइट। ये देखिए इसका भी ग्राउंड स्टोरी कैसे 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 क्या हुआ, सब लोग बोल रहे थे कि ये पूरा बिल्डिंग एक जमीन के अंदर उतर गया है, तो ऐसा नहीं था। ग्राउंड फ्लोर कॉलम्स वर कोलैप्स, ऊपर का देखो ऑलमोस्ट इंटैक्ट है, ऑलमोस्ट इंटैक्ट है, कुछ नहीं हुआ है ऊपर को। ग्राउंड फ्लोर जो सॉफ्ट था वो फेल हो गया। यहाँ देखिए ये है, यहाँ पे ग्लास पैनल है ना, ये ग्लास पैनल, यहाँ पे देखो व्यू कितना बढ़िया है, ये माउंटेन है, ब्यूटीफुल व्यू के लिए, और नीचे शीशा रखा है, ग्लास रखा है, राइट। और उस रखने से वो सॉफ्ट हो गया। ऊपर देखो वॉल्स है, यहाँ वॉल्स की वजह से वो स्टीफ है, ये फ्लेक्सिबल है, तो वो ज्यादा डिफॉर्म करेगा और मैक्सिमम डैमेज वहीं पे होगा, राइट। ये देखिए दिस इज आल्सो ग्राउंड स्टोरी का कॉलम पूरा कोलैप्स हो गया, राइट। ये दिस इज अ क्लासिकल पिक्चर फ्रॉम 2001 अर्थक्वेक, ये भी सॉफ्ट स्टोरी का फेलियर है, राइट। सो सॉफ्ट स्टोरी क्या है वो हम देखेंगे, अभी ये लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पता होना चाहिए कि सॉफ्ट स्टोरी क्या है, राइट, वो हम देखेंगे। और सबसे ज्यादा चीज है, अगेन आई एम सेइंग, वो हमें स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंट करने देना है, राइट। और उसके बाद आई थिंक दे विल लर्न अ लॉट। अभी आप देखिए यहाँ पे ये जो है, आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पे सिर्फ कॉलम है, और ऊपर के भाग में देखिए ये कॉलम और उसके साथ वॉल भी है, कॉलम के साथ वॉल भी है, ठीक है। तो अभी ऊपर का पोर्शन स्टीफ हो गया, ग्राउंड फ्लोर है वो फ्लेक्सिबल है, राइट। कैन यू सी दिस, आप देख सकते हो? Yes, sir. कैन यू सी दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हेलो Yes, sir. We can see. हेलो Sir, it's visible, sir. हेलो, Sir, it's visible, sir. विजिबल ना? ओके, Yes, sir. ओके। सो यू सी ये ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ कॉलम है, ऊपर ये स्टील का वॉल, मतलब शियर वॉल प्लस मैंने कॉलम भी रखे। अभी आप देखो अगेन स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, और क्या होता है ये देखिए, ये देखिए ग्राउंड फ्लोर के कॉलम पे क्या होता है। जो ऊपर का बिल्डिंग है वो ऐसे यूनिट मतलब मूव हो रहा है, और ग्राउंड फ्लोर पे जो मूवमेंट है वो क्या है, सिर्फ ये कॉलम में आ रहा है, राइट। लुक एट दिस, लुक एट दिस, राइट, दिस इज द परफेक्ट सॉफ्ट स्टोरी इफेक्ट, परफेक्ट सॉफ्ट स्टोरी इफेक्ट, राइट। तो ज्यादा डिफॉर्मेशन कहाँ ग्राउंड फ्लोर पे आ रहा है, राइट। आप फिर से देखिए एक बार तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपका, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सॉफ्ट स्टोरी, कहीं भी ये नहीं होना चाहिए। 2001 में हमने बहुत देखा था कॉलेप्स, ये अगर यही रिपीट करेंगे हम तो ऐसा ही होगा, राइट। ये सॉफ्ट स्टोरी इफेक्ट क्या है, देखो डिफॉर्मेशन कहाँ पे आ रहा है। अभी ये फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है, फ्रीक्वेंसी में बढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे देखो, यस ये ज्यादा होगा। जस्ट लुक एट दिस नाउ, या नाउ लुक एट दिस, सो ऊपर का तो पूरा ऐसे रिजिड बॉडी मूव हो रहा है, नीचे का डिफॉर्मेशन नीचे आ रहा है, राइट। सो दिस इज अ सॉफ्ट स्टोरी इफेक्ट, राइट, सॉफ्ट स्टोरी इफेक्ट। अभी हम देखेंगे उसका फेलियर, राइट। सॉफ्ट स्टोरी फेलियर कैसा होता है। अब ये देखो ये अभी स्टूडेंट है, वही परफॉर्म कर रहे हैं फिर से,
वही ग्राउंड फ्लोर पे इस कॉलम में, फर्स्ट फ्लोर पे कॉलम एंड वॉल, शियर वॉल है, मतलब यहाँ पे स्टील का वॉल रखा है, और यहाँ पे ये स्ट्रीट लेवल है जो उसका लेवल चेक करता है फ्लोर का, और हम परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। जस्ट लुक एट दिस, तो आपको पता चलेगा क्या होता है। ये देखो डिफॉर्मेशन ऑन द ग्राउंड स्टोरी, वहां पे हो रहा है डिफॉर्मेशन, यस। अभी उसको हम बढ़ा रहे हैं थोड़ा फ्रीक्वेंसी, लुक एट दिस, ये डिफॉर्मेशन देखो बढ़ा ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, स्टिल वाइब्रेशन हमने कंटिन्यू रखा। अब आप देखिए अपर पार्ट रिजिड बॉडी के हिसाब से मूव हो रहा है, सिर्फ रिजिड बॉडी, और नीचे देखो टोटल डिफॉर्मेशन नीचे है, और ये गैप इट कोलैप्स्ड हियर, राइट। यहाँ पे देखो ये पोर्शन है, यहाँ पे ये कॉलम ब्रेक हुआ, राइट। अभी यू कैन सी द स्माइल, ये स्माइल बहुत जरूरी है, ये जो स्माइल है ना, ये ज्यादा जरूरी है किसी चीज को समझने के लिए। अभी ये जो स्टूडेंट ने जो लर्न किया यहाँ पे, वो बहुत जरूरी है ना। ये देखो ये टूटा, और आफ्टर दैट स्क्रैपिंग, राइट। पहले तो एंजॉय करते हैं कि ये कैसे हो रहा है, ये हमने जो सोचा था वैसे ही ये हुआ है, और यहाँ पे तो लॉट ऑफ एनर्जी, यहाँ पे काफी सारे वाइब्रेशंस मतलब साइकिल्स हुई, तो वहां पे जब टूटने से पहले काफी सारी एनर्जी रिलीज वहां पे हुई, राइट। तो ये जो है वो आपको वहां पे आपको हीट भी लगेगा, गर्म भी लगेगा, ऐसा लॉट ऑफ एनर्जी वहां पे रिलीज होती है, राइट। तो अभी आप सोचो कि ये लड़के जो यहाँ पे सीख के जाएंगे ऐसी चीज, तो वो इन फ्यूचर ये ध्यान ही रखेंगे कि कभी भी जो बिल्डिंग बनाए वो सॉफ्ट ना हो, है ना। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। सो अगेन आई एम सेइंग लेट स्टूडेंट टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, और उनको बताओ, फेलियर्स बताओ, और फेलियर्स से हम काफी कुछ सीख सकते हैं। इन रियल लाइफ हम फेलियर्स नहीं चाहते, लेकिन लेबोरेटरी में तो फेलियर्स दिखोगे तो अपने जीवन में पूरी जिंदगी उसको याद रहेगा। ये सारे जो है वो हमारा एक्सेलरेशन, जो हमने जो पिकअप किया वो एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पे ये जरूरी चीज क्या है, ये डिफॉर्मेशंस, राइट। टोटल डिफॉर्मेशन कितना हुआ, आपका 40 हुआ, राइट। 40 हुआ, 40 में से 30 तो कहाँ पे हुआ, ग्राउंड स्टोरी पे, राइट। 30 आउट ऑफ 40, 30 तो ग्राउंड स्टोरी पे है, राइट। ये एक्चुअली सारे फ्लोर पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, 30 जैसा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए सब में एक जैसा, मतलब पहले में ये 13 होना चाहिए, 26 होना चाहिए, 40 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। 26 यहाँ पे कितना हो गया, 13 की जगह कितना हुआ, सीधा 30 हो गया, है ना। एक्चुअली क्या होना चाहिए यहाँ पे 40 है, तो इस हिसाब से यहाँ पे 13 होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए 26 होना चाहिए, और ये 40 होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, ऐसा होना चाहिए, राइट। उसके क्या हुआ, 13 की जगह सीधा ये डिफॉर्मेशन आया 30, तो वो कोलैप्स होने ही वाला है, right? This is the soft story effect. Large deformations are there, and concrete उसको ले नहीं पाएगा, फेल हो जाएगा, right? कई बार ये soft story ऊपर, right? तो ये soft story ऊपर होगा, मतलब 2 मिनट में वो कहीं पे भी है, नेचर फाइंड कर लेगी सॉफ्ट, आपने गलत प्रैक्टिस कहाँ पे किया है वो फाइंड कर ही देगा। ये इंटरमीडिएट सॉफ्ट स्टोरी, राइट। ये देखिए यहाँ पे कई बार बीच में ऐसा होता है कि मुझे ऑडिटोरियम चाहिए बीच में, तो हम कॉलम निकाल देते हैं बीच में से, तो इट बिकम सॉफ्ट, राइट। Now we go for the shear wall, right? Shear wall हम asymmetric रखे, right? तो क्या होता है, right? We'll see that. Right? ये इसको हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्या रखा है, हमने एक साइड shear wall रखा, दूसरी साइड shear wall नहीं रखा है, राइट। तो अभी शेकिंग होगा तो मुझे पता है कि ये जो shear wall वाला पोर्शन है वो स्टीफ है, वो सामने वाला फ्लेक्सिबल है, तो ये जो फ्लेक्सिबल है वो ज्यादा मूव होगा,
और शियर वॉल वाला कम मूव होगा, राइट। तो क्या आएगा, ये पूरा स्लैब रोटेट करेगा, स्लैब रोटेट करेगा तो कॉलम में टॉर्शन आएगा, कॉलम में टॉर्शन आएगा। देखते हैं हम क्या आता है। जस्ट लुक एट दिस, क्या हो रहा है, जो सिर्फ कॉलम है वहां पे ज्यादा मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। तो ये पूरा ट्विस्टिंग हो रहा है, राइट। तो कई बार हमें आर्किटेक्ट बताता है, आर्किटेक्ट कैसे बताते हैं, आर्किटेक्ट इज ऑलवेज डोमिनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर, स्ट्रक्चर इंजीनियर के ऊपर। तो ये डोमिनेशन में क्या होता है कि वो एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि मेरा स्ट्रक्चर कैसा दिखना चाहिए। अभी वो बताएंगे मुझे आगे मेरे फ्रंट पे तो मुझे एलिवेशन चाहिए, और मुझे आप शियर वॉल पीछे रखोगे चलेगा, तो हम शियर वॉल पीछे रखते हैं। तो उसी से क्या होगा, इट्स अनसिमेट्रिकल होगा तो टॉर्शन आएगा। अभी हम अर्थक्वेक फोर्स को तो अच्छी तरह से डील नहीं कर रहे, और यहां से हम उसको टॉर्शन भी डाल रहे हैं। तो वी आर मेकिंग अवर लाइफ मिजरेबल, आई टेल यू, बहुत ज्यादा मिजरेबल हो जाती है, राइट। ये सारे एक्सेलरेशंस है, और वो जो पिकअप किया है वो राइट, उसमें जो एक्सेलरेशन है वो दोनों डायरेक्शन में आएंगे, राइट। एक्स एंड जेड दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशंस होंगे, राइट। Okay, then we have पाउंडिंग मतलब दो बिल्डिंग अगर क्लोज है एक दूसरे के, तो जब शेकिंग होगा तो दोनों बिल्डिंग वाइब्रेट होंगे। व्हेन दे विल वाइब्रेट दे विल हीट ईच अदर, अगर उसके बीच सफिशिएंट गैप नहीं है तो, राइट। अब ये दो बिल्डिंग के बीच गैप नहीं है तो दे विल हीट ईच अदर, राइट। तो अब देखो क्या होगा, ये स्लैब है वो कॉलम को हिट करेगा, या तो स्लैब को हिट करेगा अगर हाइट सेम है तो स्लैब टू स्लैब होता है, स्लैब टू कॉलम पाउंडिंग होता है, इसको पाउंडिंग बोलते हैं। whether slab is hitting the column, slab is hitting the slab, ये इम्पैक्ट आएगा इससे, राइट। लुक एट दिस, ये जो है यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फेलियर हुआ। ये देखिए दो बिल्डिंग क्लोज थे, ये दोनों के पाउंडिंग की वजह से जो वीकर बिल्डिंग था वो गिरेगा, राइट। तो हमें ध्यान रखना है कि ना हो, राइट। ये लुक एट दिस, इम्पैक्ट टॉप पे हुआ, ये इतना कॉलेप्स हो गया, जो वीक है वो कॉलेप्स होगा। ये 1985 Mexico City earthquake. Right. Look at this, right? Look at this. This is a pounding effect. Pounding means hitting each other, right? So without pounding, pounding of slab with column, pounding of slab with slab, right? ये हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। ये मॉडल है जहां पे ये जो स्लैब है, वो कॉलम को हिट कर रहा है यहाँ पे स्लैब टू स्लैब, राइट। सो वी नीड अ सेपरेशन बिटवीन देम। उसके नीचे सफिशिएंट गैप होगा तो वो नहीं होगा। सो हम देखते हैं पाउंडिंग ऑफ स्लैब टू कॉलम। अभी ये देखिए, ये जो है स्लैब एंड दिस इज द कॉलम, सो स्लैब टू कॉलम ये हिट करेगा। ये देखते हैं अभी ये जो आप देखिए, तो ये फर्स्ट जो बिल्डिंग है उसकी हाइट ज्यादा है, दूसरे में 2 स्टोरी है, राइट। उसकी हाइट कम है, तो फ्रीक्वेंसी ये एक की कम हुई, दूसरे की ज्यादा हुई, राइट। तो हमें ये देखना है कि क्या हो रहा है। ये देखो अभी ये जो स्लैब है वो इस कॉलम को हिट करेगा, ये स्लैब है ये कॉलम को हिट करेगा, राइट। हमने पूरा अर्थक्वेक के लिए डिजाइन किया है इसको, लेकिन हमने इम्पैक्ट के लिए डिजाइन नहीं किया है। तो क्या होगा, नहीं डिजाइन किया तो वो कॉलम को हिट करेगा, इम्पैक्ट में डबल फोर्स आता है, राइट। तो क्या होगा, फेलियर होगा, राइट। जस्ट लुक एट दिस,
look at this, right? So they are hitting each other. So it is a slab to column pounding. तो उसके ऊपर काफी डैमेज हुआ. यहाँ में फेलियर मैंने नहीं बताया, लेकिन डैमेज काफी कुछ हुआ, राइट? सेकेंड इज स्लैब टू स्लैब पाउंडिंग. स्लैब से स्लैब का पाउंडिंग कैसे होता है? और इसमें जरूरी जो ये जो सारे के वीडियोस है उसमें बैकग्राउंड में स्टूडेंट्स कैसे एंजॉय करते हैं वो भी है. वो क्या, लुक एट दिस. नाउ दिस इज अ स्लैब. दोनों स्लैब एक ही लेवल पे है, एक ही लेवल पे है. नाउ विल सी क्या होता है. Now you can see this impact, a huge noise is also coming, right? ये noise भी बहुत ज्यादा होता है, right? So we are not interested in noise, but we are interested in the impact value. क्या आता है, right? तो अगर आप ये देखने जाओ तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे सेंसर रखे, सेंसर ने रिकॉर्डिंग किया एक्सेलरेशन और सब, और जब एनालाइज किया तब यू सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? कि ये सारे एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट आ गए, राइट? और यहाँ पे ज्यादा जरूरी, जब पाउंडिंग फोर्स हीट करता है तो कितना एक्सटर्नल फोर्स आया इसके ऊपर. अब सोचो कि इतना, ये एज कंपेयर टू द नॉर्मल फोर्सेस, यहाँ पे ये करीबन 2 गुना से ज्यादा फोर्स हो जाता है, right? So this impact force which will make structure to collapse, right? अब ये देखो, ये जो हमारा रिकॉर्ड है उसमें भी ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये जो है, ये क्या है, ये सारे पिक्स जहां पे हीटिंग हुआ है, ये स्लैब ने स्लैब को हीट किया है, राइट? सो दिस इज अ इम्पैक्ट लोडिंग, राइट? और ये जो है स्लैब टू स्लैब, उसमें थोड़ा कम है एज कंपेयर टू, ये देखो यहाँ पे क्या आता है 34-26 है, यहाँ पे 24-26, राइट? सो स्टेप टू स्टेप पाउंडिंग, उसमें ज्यादा डायरेक्ट कॉलम के ऊपर नहीं आ रहा है, उसी हिसाब से थोड़े इट इज लिटिल better as compared to slab to column pounding. Slab to column is worst, I tell you, it is the worst, right? So so what is the solution? The solution is very simple. Maintain a gap between these two. Assume कि दोनों बिल्डिंग एक दूसरे के सामने मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है, राइट? तो उसका मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आपको कैलकुलेट करना है टॉप का, और जो भी डिफॉर्मेशन है, तो हमारा जो ड्रिफ्ट है 0.004 h मल्टीप्लाई बाय रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर r, उससे मल्टीप्लाई करो, उतना डिस्प्लेसमेंट आपको उतना गैप रखना है, ठीक है? उतना गैप रखोगे तो वो हिट नहीं करेगा. सो रिक्वायर्ड गैप, आपको ये जो गैप है उसका डिजाइन करना है, दैट्स ऑल. इसमें अगर ये गैप का ऑप्शन आपके पास नहीं है, दोनों क्लोज ही है, तो सिंपल चीज है कि मैं मेरा बिल्डिंग को स्ट्रांग बनाऊंगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन मेरे पास है ही नहीं. अदरवाइज ड्यूरिंग अर्थक्वेक माय बिल्डिंग में कोलैप्स. लेकिन आपको यही ध्यान रखना है कि गैप का डिजाइन अच्छी तरह से हो, राइट? दूसरा, द बिल्डिंग्स विद द री-एंट्रेंट कॉर्नर. हम बताते कि एल शेप बिल्डिंग, सी शेप बिल्डिंग, एच शेप बिल्डिंग, दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल ड्यूरिंग द अर्थक्वेक. ये नहीं परफॉर्म करते हैं. क्यों नहीं करते वो हम देखते हैं, राइट? लुक एट दिस इज द सी शेप बिल्डिंग, राइट? अभी सी शेप बिल्डिंग और जो वाइब्रेट होगा तो क्या होगा, शेकिंग करेंगे तो वो हम देखते हैं कि कैसे क्या होगा. ये देखो, ये जो है वो होटल है, तो अभी आप देखो कि अगर ये बिल्डिंग इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, राइट? इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, तो क्या होगा कि ये पोर्शन जो है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, स्टीफ हो जाएगा, और ये पोर्शन है थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेगा. तो यहाँ पे
ये पोर्शन थोड़ा कम मूव होगा, ये ज्यादा मूव होगा, तो क्या होगा, ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस आएगा, उसको बोलते हैं री एंट्रेंट कॉर्नर, और यहाँ पे फेलियर यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट। वहां पे ज्यादा क्रैक्स आएगी डिफॉर्मेशन की वजह से, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंशियल मूवमेंट टेकन प्लेस। एक पोर्शन स्टीफ है, एक पोर्शन फ्लेक्सिबल है, तो उससे ये लुक एट दिस, राइट। ऐसा बिल्डिंग हम देखते हैं क्योंकि बीच में हमें ओपन जगह चाहिए, हमें वेंटिलेशन चाहिए, तो हम ये करते हैं, ओके फाइन, ये करना चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। ये सी शेप बिल्डिंग, राइट, इट इज एल शेप बिल्डिंग। अभी ये जो बिल्डिंग है, आई टेल यू, दिस इज अ ग्राउंड प्लस 10 स्टोरी वाला बिल्डिंग था। अहमदाबाद में सिर्फ 2 बिल्डिंग गिरे थे, उसमें से एक शिखर करके जो बिल्डिंग था वो सी शेप बिल्डिंग था, सी शेप। सी शेप में से उसका एक विंग पूरा गिर गया। रीजन वाज कि एक का डिफॉर्मेशन ज्यादा था, एक का कम था, राइट। उसकी वजह से ये एक दूसरे की हार्मफुल इफेक्ट एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर हुई, और एक नसीब ऐसा अच्छा था कि एक ही पोर्शन गिरा, पूरा बिल्डिंग नहीं गिरा, लेकिन एक पूरा विंग गिर गया था। लेकिन उसमें काफी सारे पॉइंट्स थे। एक तो सी शेप बिल्डिंग था, उसके अलावा उसका फाउंडेशन का डिजाइन बहुत, मतलब इन्वेस्टिगेशन बहुत पुअर था। उन्होंने ये इतना स्टोरी वाला बिल्डिंग है 10 स्टोरी, उसमें से 4 फुट के ऊपर उसने रखा था, और उसका जो एसपीसी का रिपोर्ट था वो 10 मीटर पे था, राइट। सो दिस इज समथिंग अनयूजुअल, राइट। सो दिस वाज collapsed, लुक एट दिस, राइट। सो बेसिकली क्या होता है, कई बार मैंने आपको बताया, आर्किटेक्ट आपको बताएगा कि भाई ये फ्रंट है, तो फ्रंट में मुझे कुछ नहीं चाहिए शियर वॉल, आप बैक में रख सकते हो। तो हमारा जो लिफ्ट है या तो शियर वॉल हम पीछे की साइड रखते हैं। नाउ ये देखो, ये स्टील का है, तो ये स्टील का वहां पे सिर्फ कॉलम है, यहाँ पे आरसीसी का वॉल है, तो दिस इज वेरी फ्लेक्सिबल। जो शियर, और ये जो शियर वॉल है वो इट इज बेसिकली शियर वॉल है, वो बहुत स्टीफ हो जाएगा। अब ये होने से क्या होगा, ये पोर्शन जो शियर वॉल वाला है वो कम मूव होगा, और ये जो है वो ज्यादा मूव होगा, तो टॉर्शन आएगा कॉलम में, राइट। अभी ये टॉर्शन आएगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अर्थक्वेक फोर्स को कंसीडर करना और उसमें ये ऐड करना टॉर्शन, तो अगेन वी आर मेकिंग अवर लाइफ इजिएबल। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल टॉर्शन अंडर अर्थक्वेक फोर्सेस, राइट, बहुत डिफिकल्ट है। ये पूरा आपका जो स्लैब है रोटेट होगा, वो रोटेट होने से क्या होगा, कॉलम में टॉर्शन आएगा, राइट। ये पूरा बिल्डिंग ऐसे ट्विस्ट होगा, राइट। सो टॉर्शन आएगा कॉलम में, जो टॉर्शन आएगा तो उसमें एडिशनल शियर फोर्सेस आएंगे, एडिशनल शियर फोर्सेस, राइट। जस्ट फॉर अ मोमेंट प्लीज। ओके, नाउ यू कैन सी, ये इसकी वजह से ये एल शेप का बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो गया, राइट। ये भी एल शेप का बिल्डिंग कोलैप्स हुआ, ये भी बिल्डिंग कोलैप्स हुआ, राइट। ये टॉर्शन की वजह से ये देखिए, बिकॉज ऑफ द टॉर्शन, आगे आपने शेयर वॉल नहीं पीछे शेयर वॉल रखा है, तो आगे वाला जो फ्लेक्सिबल पोर्शन है वो ज्यादा वाइब्रेट हुआ, और इसी की वजह से ये फ्रंट पोर्शन कोलैप्स्ड, राइट। सो सिंपल चीज है, हम मॉडल टेस्टिंग करते हैं, तो मॉडल टेस्टिंग में सेपरेट मॉडल और री-एंडेड कॉर्नर वाला करते हैं, राइट। तो जैसे आप देखो कि ये जो है वो ये जो मॉडल है वो एल शेप मॉडल है, राइट। और यहाँ पे ये अर्थक्वेक फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है। अभी ये जो पोर्शन है वो इस डायरेक्शन में स्टीफ होगा, ये पोर्शन थोड़ा फ्लेक्सिबल होगा, तो वो ज्यादा मूव होता है, राइट। वो ज्यादा मूव होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो ये कॉर्नर है, दिस इज अ री एंटर कॉर्नर, जहां पे वो दो मिलते हैं री एंटर कॉर्नर, वहां पे ज्यादा स्ट्रेस आएगा, राइट। और वहां से आपको फेल होने का, तो हमें क्या करना है, उस दोनों को अलग ही कर दो, यहाँ से उसको सेपरेट कर दो, सेपरेशन इज द सॉल्यूशन, राइट। सेपरेट कर दो तो मूव होगा, तो एक का डेट्रीमेंटल इफेक्ट दूसरे के ऊपर ट्रांसफर नहीं होगा। सो दैट दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। लुक एट दिस, ये जो एल शेप का बिल्डिंग है उसमें हमने क्या किया, हमने सिर्फ ऐसा किया कि यहाँ पे ये जो ऑरेंज वाला है उसमें 6 कॉलम्स है, यहाँ पे 4 कॉलम्स है, राइट। और उसको हमने क्या कनेक्ट किया, यहाँ से कनेक्ट किया है, ये कनेक्टर है, तो उसे हमने कनेक्ट कर दिया ये कॉलम को, राइट। तो वो
एल शेप हो गया, अगर उसको मैं सेपरेट कर दूंगा तो वो सेपरेट हो जाएगा, राइट। अभी आप देखो कि क्या हो रहा है। जस्ट लुक एट दिस, राइट। अभी दोनों को कनेक्ट किया हुआ है। अभी सिर्फ मैं एकदम स्लो मोशन, ये एक्चुअली लो फ्रीक्वेंसी वाला है। अगर मैं यहाँ पे चेकिंग दे रहा हूं तो अभी क्या होगा देखो। You can see there is a torsion, right? The rotation of the slab taken place, right? है ना? So this is very detrimental। और ये जो है, जब हम टॉर्शन आता है तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा वो दोनों डायरेक्शन में आएगा, राइट, एक्स एंड जेड, क्योंकि टॉर्शन आ रहा है। टॉर्शन में एक्स और वाई उस दोनों में कंपोनेंट आपका एक्सेलरेशन का आएगा, ठीक है। देन वी हैव अ लिक्विफेक्शन मॉडल ना, वो भी बहुत सिंपल तरीके का बताने का प्रयत्न कर रहे हैं हम कि लिक्विफेक्शन क्या होता है। मैंने पहले भी बताया लिक्विफेक्शन मतलब क्या। कोहेजन लेस सॉइल, वाटर टेबल हाई है तो अर्थक्वेक में ये वाटर टेबल वो आएगा ऊपर, मतलब पानी ऊपर आएगा। अगर पानी को निकलने की जगह नहीं दी तो द स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल इज फिल्ड विद वाटर, तो वो क्या होगा, फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। कोहेजन जीरो है, फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा, तो सॉइल विल बिहेव लाइक ए लिक्विड। अगर सॉइल लिक्विड के तरीके से वो बिहेव करेगा तो वो फेलियर उसका हो सकता है, ठीक है। सो हम वो देखेंगे। सो हमने यहाँ पे क्या किया, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट वर्कआउट किए कि भाई फाउंडेशन के ऊपर है, तो फाउंडेशन के ऊपर उसका कैसा स्टडी होता है। तो हमने 3 फाउंडेशन, आइसोलेटेड, ड्राफ्ट एंड पाइल, राइट। तो हम देखते हैं कि क्या होता है लिक्विफेक्शन ऑफ आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में क्या होता है, सिंपल चीज है एकदम, राइट। ये कोई भी बंदा समझ सकता है कि क्या हो रहा है। अब ये सिंपल चीज है, राइट। वो फाउंडेशन है, शेकिंग हुआ, ये देखो ये सैचुरेटेड सैंड है, तो डिफरेंशियल सेटलमेंट कुछ अंदर चले गए। सो इट इज अ बेसिकली अ डिफरेंशियल सेटलमेंट, राइट। सो ये फिर से देखो एक बार क्या हो रहा है। हमने पूरा सैचुरेट करके रखा था, सो इमीडिएटली द डिफरेंशियल सेटलमेंट टेक्स प्लेस, राइट। अगर मैं राफ्ट कर रहा हूँ, इसकी जगह राफ्ट मतलब मैंने आइसोलेट की जगह राफ्ट कर दिया नीचे, तो क्या होगा, तो वो थोड़ा एडवांटेजेस रहेगा हमारे लिए, वो देखते हैं। ये देखो राफ्ट है, राइट, नीचे राफ्ट कर दिया, उसमें पंचिंग शेयर होता है आइसोलेटेड में, यहाँ पे पंचिंग शेयर नहीं होगा, तो क्या होगा अभी, यू कैन सी दिस, देयर इज नो डिफरेंशियल सेटलमेंट। सेटलमेंट हुआ है लेकिन डिफरेंशियल सेटलमेंट नहीं है। अगर डिफरेंशियल सेटलमेंट नहीं है तो क्या होगा, तब बिल्डिंग को नुकसान बहुत कम होगा। डिफरेंशियल सेटलमेंट होता है तभी उसको नुकसान ज्यादा होता है। तो राफ्ट इज बेटर देन आइसोलेटेड फुटिंग, उसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा आएगा, उसमें लिक्विफेक्शन नहीं रहेगा, मतलब लिक्विड होगा लेकिन इफेक्ट कम रहेगा। लास्ट इज अ पाइल फाउंडेशन लेते हैं। पाइल में क्या होता है, पाइल मतलब इट इज रेस्टिंग ऑन अ हार्ड स्ट्रेटा, तो उसको हम इसके ऊपर रख देते हैं। और अभी पाइल में तो इज रेस्टिंग ऑन अ हार्ड स्ट्रेटा, तो कोई दूसरा इफेक्ट होने की संभावना नहीं है, राइट। वो हम देखेंगे, वो विल सी क्या होता है।
अभी जब तक ये हार्ड स्टेटर नहीं आएगा वो अंदर होगा। अभी देखो हार्ड स्टेटर आ गया, नीचे टच हो गया पाइल, अभी उसका डिफरेंस सेटलमेंट नहीं होगा, राइट? दैट्स ऑल, राइट? सो दिस इज सम एक्सपेरिमेंट्स, राइट? समटाइम्स दूसरा जो चीज है वो डिटेलिंग पोर्शन, रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जनरली अर्थक्वेक में क्या होता है कि कॉलम के ऊपर लेटरल फोर्स आता है, तो उसमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों आएंगे, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों आएंगे, राइट? तो आप देखो अभी ये मैक्सिमम मोमेंट यहाँ पे और यहाँ पे आएगा, तो हमें पता है कि अगर यहाँ पे डक्टाइल डिटेलिंग नहीं किया है, यहाँ पे क्लोज स्टीरअप्स नहीं रखा है, तो कोलैप्स होने की संभावना है। तो देखते हैं हम क्या होता है। ये देखो यहाँ पे अच्छा था इसलिए वो बचा, गुड शियर रिइंफोर्समेंट था तो वो बचा। यहाँ पे देखो क्या हुआ, तो पता है कि मैक्सिमम मोमेंट टॉप में आएगा या तो बॉटम में आएगा ड्यू टू द लेटरल फोर्स, अर्थक्वेक फोर्स की वजह से ये होगा, राइट? तो या तो ऊपर डैमेज होना चाहिए, नीचे, या तो दोनों जगह होना चाहिए, राइट? तो जनरली एक जगह इनिशिएट हो जाता है डैमेज, तो वो उसके बाद वहां से कंटिन्यू करता है, वो दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होता है। सो देयरफॉर मोस्ट ऑफ द टाइम हम टॉप एंड बॉटम की जगह एक ही जगह डिफॉर्मेशन, मतलब एक ही जगह डैमेज देखते हैं, राइट? दिस इज व्हाट वी मोस्ट ऑफ द टाइम। लुक एट दिस, राइट? तो यहाँ पे स्टीरअप का स्पेसिंग देखो बहुत ज्यादा है, तो ये तो फेल होने वाला है, राइट? So this is the inadequate shear stirrups. You can see here, right? It is gone. You can see here, this is also gone, right? Top, maximum moment at top and bottom. ये प्रूव भी हो जाता है, हम जो थियरी पढ़ाते हैं वो यहाँ पे प्रूव हो जाती है कि भाई ऊपर जो मोमेंट टॉप एंड बॉटम पे आता है तो वहीं पे फेल होगा, राइट? ये देखो, राइट? ये सारे एग्जांपल्स हैं, राइट? It is a case of improper detailing of reinforcement, right? Improper detailing. Look at this, improper shear reinforcement, right? Improper shear reinforcement. यहाँ पे joint है, तो ये देखो joint में वो penetrate हुआ, right? Right. These are the right. So this is a closed stirrups, top and bottom में closed stirrups होने चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है, right? So हम जो IS 1320 स्टडी करते थे उसे पता है कि यहाँ पे जो है क्लोज स्टीरअप्स टॉप एंड बॉटम में सभी जगह क्लोज स्टीरअप्स होने चाहिए। जो लॉन्जिट्यूडल बार है, जो हमारे कॉलम के बार है, वो हम कहाँ पे लैपिंग करते हैं? जब लैपिंग हम स्लैब के ऊपर आते हैं, स्लैब के ऊपर ही लैपिंग करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट? वो गलत है, वहां पे लैपिंग नहीं करना है। आपको कहाँ लैपिंग करना है? मिडल थर्ड, बीच में आपको लैपिंग करना है, यहाँ पे आपको बीच में लैपिंग करना है, राइट? सो ये लैपिंग भी बहुत जरूरी है, राइट? सो डक्टाइल डिटेलिंग इज समथिंग डिफरेंट। 456 का जो डिटेलिंग है वो अलग है, 1320 का अलग है। तो आपको ये डिटेलिंग आपको ठीक तरह से करना है। ये देखो ये जो कॉलम का बार आया वो कॉलम, सॉरी बीम का बार आया वो कॉलम में गया, ठीक है ना? तो ये जो एंकरेज है, एंकरेज लेंथ है, उसको डिफाइन करना है, क्योंकि जब भी मूवमेंट होगा ना तो ये बार जो है हमारा इन्फोर्सिंग बार, वो एक्चुअली खींच के बाहर आ जाएगा। अगर पूरा एंकरेज दिया है तो वो बाहर नहीं आएगा और इंटेक्ट रहेगा। सो इंटीग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? उसके बाद ये देखो ये है बीम कॉलम जॉइंट है, तो बीम कॉलम जॉइंट में भी हमने शियर स्टीरअप रखे हैं, राइट? सो 1320 में बोला है कि ये चाहिए, राइट? तो यहाँ पे भी स्टीरअप्स है। तो ये छोटी छोटी चीज आपको ध्यान रखना है, राइट? और जब आप फाउंडेशन के लिए जाते हो तो ये जो 300 mm का जो पोर्शन है वो क्रिटिकल होता है, वहां पे आपको क्लोज स्टीरअप्स रखना है, राइट? तो हमने एक मॉडल ऐसा बनाया कि 456 के हिसाब से क्या हो रहा है, 1320 के हिसाब से क्या है, राइट? तो ये जो पूरा है वो हमने मॉडल एक बनाया। यू कैन सी दिस, यहाँ पे क्लोज स्टीरअप्स है। अभी कोई बच्चा देखेगा, कोई स्टूडेंट देखेगा तो उसको पता ही चल जाएगा कि भाई क्या ये सही है या गलत है, राइट? अगर आप यहाँ पे भी क्लोज स्टीरअप्स है, बॉटम में भी, राइट? और आप देखो यहाँ पे मिडल में लैपिंग किया है, यहाँ पे 50% बार एट वन पोर्शन, 50% एट अदर। एक साइड मैंने 50% बार कटेक्ट किया, दूसरी तरफ 50% बार कटेक्ट किया, दैट्स ऑल, राइट? तो 50% बार आपको लैपिंग करना है, वहां पे लैप करना है
ये याद रख रहे हैं, ठीक है। ये हमने जो पूरा जो सेटअप था शेक टेबल एंड मॉडल्स, वो हमने 2011 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था गांधीनगर में, जहाँ पे 39 कंट्रीज से लोग आए थे, उसमें हमने ये पूरा डेमोन्स्ट्रेट किया था, राइट। ये पूरा शेक टेबल एंड मॉडल्स, राइट। ये देखो, ये मॉडल जो है, इट इज अ वेरी सिंपल मॉडल ऑफ डक्टाइल डिटेलिंग कि यहाँ पे क्लोज टीरप्स है, यहाँ पे क्लोज टीरप्स है एज पर 13920, लैपिंग 50% बार एट वन लोकेशन, तो हमने 50% यहाँ पे किया इस तरफ, 50% नीचे किया, राइट। यहाँ पे जो जॉइंट है उसमें रिइंफोर्समेंट आना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज आपको फॉलो करना है, राइट। अगर हम 13920 को रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो आई थिंक we can have a good performance of the building, right? ये जो मॉडल है, right? This is a ductile detailing model. So basically हमारा चीज ये था कि हमें जैसे हमारा आशय, हमारा जो इंटेंशन था वो ऐसा हाईफाई रिसर्च का नहीं था, राइट। हमारा यही था कि ये जो लेबोरेटरी है, जब हम अर्थक्वेक लैब की बात करते हैं तब लोग सोचते हैं कि भाई करोड़ों रुपए का खर्च होगा, तो वो नहीं, करोड़ रुपए का खर्च आप निकाल दो। जब आप लैब डेवलप करते हो तो उसमें सिर्फ 5 लाख में भी अच्छे डेमोन्स्ट्रेशन हो सकते हैं। तो हमने वही प्रयत्न किया यहाँ पे कि वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चरल बिहेवियर थ्रू वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट्स, राइट। ये तो सिर्फ इट इज ओनली फ्यू ऑफ देम आई हैव शोन यू, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पे डेवलप किए हैं। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू want to focus not only on the research एक बहुत जरूरी चीज है, लेकिन जो रिसर्च करने वाले लोग बहुत कम है, राइट। लेकिन जो हमारा अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, जो हमारी मेन प्रोडक्ट है, वो जब मार्केट में जाएगी, अगर वो आगे क्या करती है, वो आगे पढ़ाई करती है या साइड पे जाती है, वो हमें पता नहीं है। लेकिन जो भी बंदा यहाँ से निकलता है कॉलेज में से, उसको इतना पता होना चाहिए कि मुझे डक्टाइल डिटेलिंग कैसे करना है, मेरा स्ट्रक्चर कैसे बिहेव करेगा अर्थक्वेक में, और मुझे क्या क्या ध्यान रखना है। अगर इतनी छोटी छोटी चीज भी उनको पता चल जाए तो दे कैन इंप्रूव देयर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, आई टेल यू, राइट। सो ये हमारा बेसिकली इंटेंशन था, और हमने उसको जैसे सॉफ्टवेयर में वैलिडेट किया, उसको बाउंड्री कंडीशन भी हमने एनालिटिकली और उसमें कंपेयर किया था, राइट। तो काफी सारी चीज हमने ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स में किया था, राइट। सो दीज आर सम रेफरेंसेस, राइट। एंड बेसिकली माय गाइड वाज एचएस पाटिल, एंड उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। जीएसडीए में गुड कॉस्ट उन्होंने काफी सपोर्ट किया हमें, हमारे प्रिंसिपल, हमारे सारे स्टूडेंट्स, पीजी स्टूडेंट्स, हमारे जो मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने काफी कुछ मेहनत किया इसके। इट इज अ टीम वर्क, वी हैव अ वेरी गुड टीम, एंड आई थिंक इन टीम यू कैन विन, एंड आई थिंक यू कैन डू वंडर्स, राइट। You can understand this is our lab, and this is Professor Murthy, Professor Durgesh Rai. He was a director at IIT Jodhpur earlier, and now he is a professor at IIT Madras. Durgesh Rai is a professor at IIT Kanpur, right? They visited the lab और constantly उनका feedback मिलता रहता है। ये जो हमने डेमोन्स्ट्रेट किया था 2011 में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, मोदी साहब सीएम थे एट दैट मोमेंट, उन्होंने पूरा जो प्रोजेक्ट था उसको उन्होंने देखा था और रिव्यू किया था, राइट। सो यू कैन सी द वेल नोन फेसेस। दिस इज द डॉक्टर मार्शल फ्रॉम द पेरू। वो उन्होंने विलेजेस पे ऊपर बहुत काम किया था, और उनका फीडबैक हमारे लिए बहुत अच्छा रहा था, एंड उन्होंने काफी बढ़िया फीडबैक दिया था। यू कैन ऑल्सो सी द स्वेतलाना बेरजेव, she is master of confined masonry। ये काफी सारा मतलब लोगों ने हमें फीडबैक दिया था। they have visited lab also, डॉक्टर मार्शल एंड डॉक्टर स्वेतलाना, उन्होंने लैब में कैसे इंप्रूवमेंट किया जाता है जो किया था उसको अप्रिशिएट किया था। she is Marjorie Green from EERI, Earthquake Engineering Research Institute, USA, right? so ये काफी सारा इंपॉर्टेंट चीज। तो हमने एक छोटी चीज पकड़ी थी कि भाई यूजी स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को पता चलना चाहिए कि क्या बिहेवियर है, दैट्स ऑल, राइट। रिसर्च की बात वो एक उसके ऊपर तो हम पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं, राइट। लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, राइट। सो इफ यू एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क प्लीज, इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस।
Thank you so much, But sir. Very rightly said that the graduate students should have a demonstration of all the minor details that are to be taken care of while designing the buildings. And sir, we have a compliment by Vishali ma'am. Ma'am, I'll read your compliment, but I still would request you to, uh, if it is possible, that you can say it by yourself to sir. That will be much more appreciable. Pardon? Sir, actually, Vishali ma'am has given you a very nice compliment. She says that thank you so much, sir, for this wonderful session. Each and everything got very cleared. The explanation was very easy for every topic and word. I studied earthquake engineering but never felt this way about this engineering, and you made it possible so easily. I am feeling very blessed to attend this class. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Definitely, sir. The demonstrations which you brought in front of us was very attractive, and the way it was explained was very enlightening, sir. So, if the participants have any questions, you can please type in the chat box, or you can even unmute yourself. We are encouraging you to interact with Sir. Sir has given such a wonderful explanation of all the uh, aspects, especially the experiments that can be carried out regarding earthquake engineering, which are essential for the graduate students because they have a theoretical approach. When they come in front of such demonstrations, their basic theories get much more clear, and they will carry this impact for a longer duration of time into their lives. So, participants, please, if you have any questions or if you want to interact, please unmute yourself. thank you very much, sir. Yeah. Yes. Actually, I would like to inform the participants that sir is helping us in our Modros projects also. One is hydraulic actuator, and another one is biaxial shake table. And the one that uniaxial shake table that is right now in our institute is designed by sir only. Uh, I also congratulate IPS Academy because they are taking initiatives, and I think they have a good funding means to make a actuator and the biaxial shake table, and I think uh, our main purpose is to make it a cost effective, right? So this is the effort that we are making. So anyone can procure. Right? If it is a costly item, if you purchase from the MTS, now it is too costly, right? So it is not possible that each and every institute will purchase these instruments. So we try to make it low cost and available to all, right? So that is our effort, and I think IPS Academy is doing good work in this area. So I also congratulate IPS for having a Sir, good work one in of this. our Yeah. vision of our institute and department is to develop our heavy structure levels earthquake research center, and we need your help and support for this also. Yeah. No, sure, sure. Yeah. We'll definitely work together. Yes. Thank you so much, sir, for your valuable time and guidance, sir. We always require your support in the future, sir. Yeah, sure, sure. So, So, no question means I think all of you are a small partisan master, right? no, sir, the demonstration was so nice that I don't think so that anybody has any questions raised. In fact, the examples which you quoted were also very impressive that they got their concepts clear to a lot of great extent. You say I want to show some video, two video. Is it possible? Yes, Can sir, I yes, show? sir, Yes, sure. sir. Yes, sir, please, sir. So I think that will give you a clear insight of some more experiments, right? So I think it will be useful to participants. Sir, there is a question by Yes. Renuka ma'am. She says how to join brick and concrete in finite element software. Yeah. Just for a moment, I'm just demonstrating this part. Uh, you can see this. Sometimes we are using bracing. Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Right.
here you can see this is a model in which one model is without bracing, another is with the bracing, right? Now what is happening? Look at this. Now students are performing again. If you perform, then look at the behavior of these two, right? So immediately they can compare these two, right? What happens in model with the bracing, without bracing? Look at this part, right? So tremendous vibration is observed while it is controlled in case of bracing, right? So if you look at this, then again, students are keep on performing experiments. Now this is with the bracing. This is the bracing, right? Now look at this. It is performed this, right? Now you look at the deformation is quite controlled here, right? Because of bracing. Bracing increases the stiffness. When it increases the stiffness, then the deformation is controlled. Deformation is controlled, then damage is also controlled, right? But if you look at this, here you can see the failure of model without bracing, right? Look at this. Look at this. This is gone, right? So it becomes quite flexible, and if it is flexible, then larger deformation will be there, and larger deformation is there, then failure may be there, right? So this is very important for us to understand. We can also have a this is Bayes isolation experiment we have done. Bayes isolation, right? We are knowing that Bayes isolation is good, right? Now look at this. What is happening here? Here it is a ground plus 3-story building. Now here it is isolated at the ground story, right? That we know that if there is no isolation, your building is vibrated tremendously, right? Now here, just look at this. When we go for the isolation, nothing has happened to upper story. Look at this, right? Nothing has happened, right? So this is basically a roller isolation. Look at this. Again, I'm repeating. Right. So what is Bayes isolation? That you have to understand. If there is no isolation, then what is going to happen? Look at this. Then you can understand. Now look at the deformations. Look at the deformation. If there's no isolation, the larger deformation will be there. It is a very flexible frame we have made, so to understand the behavior, right? Look at this, right? But if it is with isolation, the effect will be something different, right? So basically, we have to understand this simple things, and I think that will be sufficient for us, right? So there are also some more videos of the dampers and other things, but will because the fundamental to be explained, it will take some time. So if we have some time in future, we will discuss definitely. Right? Thank you. Thank you very much, sir.
So one question is there: Yeah. how to join brick and concrete in finite element software? You see, the main part is the compatibility issue, right? The brick and concrete, both of them having a different property, and therefore when you are doing for massing, then you have to be very careful about the messing at that particular joint, and then also the assigning the properties of these two material, right? That is very important. Uh, so I think this is you have to observe when you are modeling in the software. Any other questions? If you have any further doubt, please mail us. Sir, one more question is there: how can we learn FEM? Any book? Yeah, there's a book of Zinkovich is there, is considered to be the best book for the FEM, and there are like book by Desai and Abel. It is also Yes. a very good book by Desai and Abel. Right? Zinkovich's book is considered to be the Gita of FEM, and book of Dr. Desai and Abel is again a really very good book. I think that you can refer. Right? But you have to start with a very simple book. I think if you refer the any local publisher, then it also it's fine. And then you refer this book. I think that will give you a better idea, right? Yes. Yeah. Thank you, sir. Thank you very much, Any more sir. questions? Yeah. Yes, sir. Okay, fine. Thank you very much to all the participants for patient hearing. And I think 2 sessions are a little long, but I think they might have enjoyed. And Sir, at the actually, end, you have covered the whole syllabus of EQRD basically. yeah. You see, always experiment excites us. Whether theory or excites us or not, we don't know. But definitely experiments, we learn a lot. That is the. तो हमें काफी कुछ इससे ही सीखते हैं. तो स्टूडेंट को भी बहुत मजा आता है. आई थिंक they will always enjoy. And सारे फैकल्टी मेंबर मैं उसको एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कभी भी आप ये सब्जेक्ट पढ़ाते हो तो उसमें ज्यादा एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व कीजिए और स्टूडेंट को इन्वॉल्व कीजिए उसमें. स्टूडेंट तो आई थिंक आपका लैब भी बहुत लाइव रहेगा एंड यू विल आल्सो एंजॉय. Yes. Definitely, sir. We will work on your suggestions. Yeah. Okay. Thank So you. that Thank was you a very lovely much. session, sir. Thank you very much. It was a pleasure interacting with you, sir. Yeah. Okay. Should I leave now? Yes, sir. Yes. Thank you, sir. Yeah. Thank you. Thank you very much. Yeah. All the participants are requested to join tomorrow at 9:50 mm sharp. Madam, any other thing you want to convey to the participants? Yeah, we request the participants to please interact with the speakers because that makes the environment lively, and an interaction only clears your doubts in a much better way. So please be interactive. Please raise questions, whatever simple questions come to your mind. We encourage you all to interact with the speakers. So that's for today. We will be seeing you tomorrow for the last day of this faculty development program. And we will be starting at sharp 10 a.m. So we request you to join 5 minutes earlier to the session. And we hope that your motive of having an much more better, clear understanding of this earthquake engineering would be addressed in this faculty development program. Please send us any suggestions and feedback which you would like to incorporate, so that we will try to improve it in the next part, whatever we plan to organize. Thank you so much for today.